many of you have come to listen to me? And how many of you had nothing to do, so you came? I am a little nervous today. I don't usually get nervous because I gave Gauri, the in charge of master classes, a topic. Because she called me up, she said, "Are topic dijiye, topic dijiye, topic dijiye." तो मेरे मुंह से निकल गया, okay, giving up is not a choice. And then in the morning I thought, I'm not prepared for it. Dattu baith ja. My assistant for the last 41 years, he wants to capture my life in mobile phones. So I went to ChatGPT. I typed, "Giving up is not a choice. What can be talking points?" So something came out there, and if I had to read that and if I had to say that, I would have said like something like this: life tells you what to do, and then you will do something like that. So I ignored that. How many of you think that giving up is not a choice? No, don't raise your hands just because it's fashionable to raise your hand. Actually, let me put the other question. How many of you have given up sometimes in life? I will not be judging you if you raise your hands. And how many of you thought that giving up is not a choice? Super. So about 50%. First, I must justify my position on the stage. I never got more than 38% marks in my life. Never. 37, 38. So let me play a small game. How many of you got more than 50%? Almost everybody. How many of you got more than 60%? Almost everybody. How many of you got more than 70%? क्या बात है? Almost everybody. And how many of you got more than 80%? Still you are sitting in the audience and I'm standing on the stage. Not to run down your intelligence, but that's because I did not give up. That's because I thought that giving up is not a choice. My motivational lectures, so-called motivational lectures, come from my own life. I pick up the threads of my life and I look back and I say, wow, that's a good life. A boy from Shimla, 38% marks. Father was a clerk in the forest department. And when I was going through this introduction, what a beautiful life. 550th film I'll sign next year. Next month, in fact. So how was that possible? Because I always thought giving up is not a choice. ऐसा नहीं था कि जिंदगी में मुझे परेशानियां नहीं आई. परेशानियां तो आती हैं. I could have easily chosen a topic जहाँ एक्टिंग सिखानी है. आप लोग आराम से रखते हैं, मैं एक्टिंग सिखाता और अपना काम कर लेता. लेकिन मुझे लगता है कि हम सब एक ऐसे मुकाम पे, मैंने बहुत इंग्लिश बोल ली, नाउ आई कम टू हिंदी, सो आई एम फाइंडिंग बेटर. हम सब लोग अपनी जिंदगी के ऐसे मुकाम से गुजरते हैं जहां पर आसान हो जाता है गिव अप करना. मैं जब पैदा हुआ तो मेरे पिताजी I will try my level best, darling. You are the best. What's your name? For you, giving up is not a choice. देखिए ऐसे ही होता है. Now I have to speak in English. And when my jaw starts paining, darling, what's your name? Himavati. You are the best. From Pondicherry. सर मुझे उनकी बात समझ में आ गई, आपकी बात नहीं समझ में आएगी. ये इंटरप्रेटर बैठे हुए हैं यहाँ पर. आप भूल गए, आप उससे बात कर रहे हैं जिसके लिए गिविंग अप इज नॉट ए चॉइस.
Don't worry. I'll give you a rough background of my life and what made me believe in something like this. I came from a lower middle class family. Now there are different names for lower middle class family. At that time it was Garib and Amir, poor and rich. Now there are financially deprived class, economically deprived class, lower middle class, upper middle class, etc., etc. And at that time it was just poor or rich. But in a family of 14 people, there are 14 of us in a small, half the stage. We used to live, my uncles, my granduncles, my mother, my father, my brother, my cousins, etc. And we were very poor, and my only source of income for the whole family was my father, who was earning 90 rupees back in late 50s. But what I discovered, that all of us were very happy. We were very happy. And one day I asked my grandfather, I said, Dadaji, we are very poor, why are we happy? He gave a great answer. He said, Beta, when somebody is very poor, the cheapest luxury available is happiness. So for a young, small boy, the fear of poverty or being poor went away. My father was the easiest going person. As I told you, I was never good at studies. I was never good at sports also. In fact, once my PT teacher saw me running and he said, stop it. Even if you run alone, you will come second. But I think the humor helped me. I don't know how many of you take your life in a humorous sense. But we had the luxury of being in a joint family. Joint family gives you a sense of security. How many of you have lived in a joint family? That's fantastic. How many of you are from a small town? Fantastic. So when you come from a small town, you live with less, you live with less envy. There are less people to tell you that somebody else is doing better than you. आप लेट हो गई मैडम, कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? बाकायदा एक डायरेक्टर से मिल रही थी. मैं पद्मश्री, पद्म भूषण, डायरेक्टर, एक्टर, 540 फिल्में, 2 नेशनल अवार्ड, 8 फिल्मफेयर अवार्ड. आप बाकायदा डायरेक्टर से मिल रही थी. क्यों आई लेट, क्यों आई आप? Because giving up is not a choice for me. That's it. रखिए. हाँ जी? नहीं बता रहे, कोई नाम बता रहे. अच्छा नहीं तो कोई बात नहीं सर. मेरी भी लाइफ में 2-3 पल्लवीज आई थी. पल्लवी, आई एम हैप्पी टू सी. आज शाम को क्या कर रही है? Please don't expect some Sudarshan Chakra going on behind me. I'm going to talk about things which are very real to us, which everybody goes through it. Because the best thing that I did about my life is that I did not let the core of my heart change. I still am that small town boy who came on the 3rd of June 1981 from Lucknow after passing out from drama school to Mumbai. 3rd of June 1981. When I landed in Mumbai, I was bald. This is a very dignified bald look. But some of you will realize that when you are getting bald, middle stage, some hair go from here, some go from here, some go from here. And 81, to expect to become an actor was impossible because people said, "Baal to hai nahi, actor kaise banoge?" Hairstyle was much more important than talent. I was a gold medalist. Dolly is sitting here. Dolly was my junior 1 year. I was a gold medalist from drama school, but people said, "Aap director ban jaiye, assistant ban jaiye, actor नहीं बन सकते आप." क्यों जी, क्यों नहीं बन सकता? बाल नहीं है ना. ये देखिए साथ वाले के बाल नहीं, बट वो तो ड्रामा स्कूल से नहीं है. नहीं, बाल नहीं. But because of my hair,
not being there, I got Saransh. That was strange thing. When I asked Mr. Bhatt, why did you cast me in the film? He said, bald ho na. But that did not stop there. So finally he gave me Saransh. I rehearsed for, how many of you have seen Saransh? Thank God. Thank God. Thank you, sir. God bless you, sir. What's your name, sir? You also never give up, sir. Thank you, sir. Thakur, sir, thank you so much. Saransh is one of the finest films made in Indian cinema. And that was the first encounter of me at IFFI in 1984. That film was also selected in Panorama. But the story behind Saransh is fantastic. Then you will discover what kind of a person I was. So I decided not to wear a wig, where everybody told me wear a wig. I prepared the role for 6 months. The story was about a father who loses his only son in New York and how he copes with the death of his son. 6 months I rehearsed. I used to wear dhoti kurta. I used to sit in the Shivaji Park, watch all the children over there, older people, how they behave. And I became B.V. Pradhan, the character's name. I became for 6 months. We were to start shooting on the 1st of January 1984. The first day of shooting was. On the 20th of December, my class fellow Suhas Khandge came and told me in my small room, a chawl, that Anupam, I have heard a rumor कि सारांश में बीवी प्रधान का रोल तुम नहीं कर रहे हो. तो सरप्राइज, मैं नहीं कर रहा हूं तो कौन कर रहा है? He said Sanjeev Kumar. I was a little shocked because for 6 months I had been preparing. Mahesh and Mr. Bhatt has been telling me how to do it. So I called up Mr. Bhatt and I said, Bhatt Sahab, there is a rumor that I am not doing the main role. Sanjeev Kumar is doing the main role. He said, yeah, that's true. Because producers do not want a newcomer, so they have signed Mr. Sanjeev Kumar. Don't worry, you do the other old man's role. That is a small role, but at least you will be working with Sanjeev Kumar. So I packed my luggage and I decided that this city does not deserve me. But before I was going to VT station, I said, now that Mr. Bhatt has thrown me out of the film, I remembered what my grandfather used to say. He used to say, if you don't want anything from the other person, just you will be equal from the person. So I went to Mr. Bhatt Sahab and मैंने Bhatt Sahab को कहा, Bhatt Sahab, and Bhatt Sahab said, oh, fantastic that you are not feeling bad about it and you are doing the other old man's role. That's not a big role, but at least we will be there in the film. And with Sanjeev Kumar, he's from stage and he's from such a big star, you will be noticed. I said, Bhatt Sahab, hold on. Come here. I took him to his window. He was living on the 6th floor. I said, Bhatt Sahab, वो नीचे टैक्सी देख रहे हैं? उस टैक्सी में मेरा सामान है. मैं जा रहा हूं इस शहर से, कहीं भी चला जाऊं, दिल्ली, लखनऊ, शिमला, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप दुनिया के नंबर 1 फ्रॉड है, नंबर 1 झूठे हैं. आप सच पे फिल्म बनाने, आपके अंदर ही सच नहीं है तो आप कैसे सच पे फिल्म बना सकते हैं? मैं जा रहा हूं भट्ट साहब. आपसे बेटर तो महेश भट्ट, अपने मनमोहन देसाई हैं, प्रकाश मेहरा हैं, जो बोलते हैं कि 2 मिनट का रोल करोगे 6 महीने बाद आओ. लेकिन अब थिएटर के बारे में, सिनेमा के बारे में बड़े बड़े लेक्चर देते हो. आप में इतनी हिम्मत नहीं कि राजश्री वालों को बोल दो कि ये रोल अनुपम खेर करेगा. और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं भट्ट साहब, संजीव कुमार मुझसे बेटर रोल नहीं कर सकते. अब जब आपको गुस्सा आता है तो आपको समझ लगता है कि इस गुस्से वाली लास्ट लाइन क्या होनी चाहिए. तो मुझे लास्ट लाइन नहीं मिल रही थी. मैं तो शहर छोड़ के जा रहा था, पर लास्ट लाइन नहीं मिल रही थी. हाउ व्हाट इज दैट? At the end of it, I was an actor, ना. I wanted to say last line and make an exit. मैंने कहा आप 6 महीने से मुझे बोल रहे हैं, आप में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे ले लो. और भट्ट साहब, मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपको श्राप देता हूं. और मेरा दिल किया कि मेरे हाथ से कुछ चिंगारियां निकले, और मैं निकल गया. जब मैं नीचे टैक्सी में बैठने लगा तो भट्ट साहब ऊपर से चिल्लाए रहे, ऊपर आ जा. मैंने कहा नहीं, अरे आ जा ऊपर. उस दिन टैक्सी वाले का भाड़ा भट्ट साहब ने दिया और उन्होंने कहा तुम रोल वही कर रहे हो, बिकॉज गिविंग अप वाज नॉट ए चॉइस. क्या रोल तो जैसे तैसे मैंने ले लिया, और 27 साल का बूढ़ा
27 साल का लड़का 65 साल का बूढ़ा कैसे बनेगा? It was tough because in theater I had done old man's role, but in cinema the camera goes close to you, na? So you can't look and an old man, you can't. So I thought, what should I do? They tried to do some wigs, etc., but I was not convinced with myself. So I told Bhatt Sahab, I have an idea. He said, what? I said, I think I should cut these small little hair that I have and I should put a wig on my... So he could not conceive and he could not imagine it. So he said, no, don't be silly. Now on the 1st of January, 9:30 is the shooting. Now he can't do anything. So 11:30, I was knocking a barber's door and I shaved all my head. And next morning, I had got quietly a wig made. I wore a dhoti kurta and I wore makeup and I put that thing and I went on the set as B.V. Pradhan. And Bhatt Sahab said, wow, I had not expected this to happen. I said, don't imagine things because giving up is not a choice. जब मुझे लगेगा कि मैंने कोई अच्छी बात की है तो मैं अपना सर खुजा दूंगा तो समझ लेना आपने तालियां मारनी है, ठीक है? एक रिहर्सल करते हैं. Is that okay, madam? Yeah. What did I say? बात चुप रहो. नहीं समझ में आया हूं. When I say I have said something intelligent, I will scratch my head. That means you have to clap. That's where rehearsal only with the lady. ताली मारो. आपको देख रहा हूं. सॉरी, मैं ऐसे देख रहा था. ठीक. खैर, जैसे ही सारांश रिलीज हुई एक रात में हंगामा हो गया. I told my father, mother, everybody was. My father was in fact disappointed. He said, क्या है बूढ़े का रोल कर लिया? मैंने कहा, भट्ट साहब, ये बूढ़े का रोल मुझे अगले 40-50 साल तक ले जाएगा. बात सच है. आज 41 साल बाद मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत और अपनी पहली फिल्म सारांश से कर रहा हूं. So people will tell you different things. In fact, when I went to Bombay, everybody said there is a Pamposh restaurant. All the strugglers sit there. Bandra, that's right. Pamposh. So I landed up. I said it's custom that all the strugglers are supposed to go and sit in Bandra. So when I sat there were 8-9 people in their 60s, in their 40s, in their 50s, and all drinking देसी शराब. मुझे नहीं पता था देसी क्या. उन्होंने कहा कॉफी पियेंगे, तो मुझे लगा कॉफी होती होगी, ये कॉफी बोल रहा है. मैंने कहा पीऊंगा. मैंने पी और ऑलमोस्ट धुएं सब जगह से निकल आए. एंड देन आई हर्ड देम लिसनिंग सेइंग, 8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं भाई साहब. कल लंबू आया था बैंड्रा में महबूब स्टूडियो के बाहर, मैंने देखा ही नहीं उसकी तरफ. इट वॉज मिस्टर बच्चन के बारे में बात कर रहा था और 8 साल से स्ट्रगल कर रहा था. दूसरा बोला, भाई साहब 9 साल हो गए हैं, सब लोगों को जानता हूं, काम नहीं मिला तो क्या हुआ, 9 साल तो हो गए ना. और मेरे मन में चल रहा है, अगर मैं इनके साथ बैठता रहा तो मेरा फ्लैश फॉरवर्ड गया कि 8 साल बाद मैं भी यहां बैठा हूं और मैं कह रहा हूं भाई साहब 8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं, बाल नहीं तो क्या हुआ, इंटेलिजेंट तो हूं. I decided that I will not sit with people who are talking about struggling, who are talking about past. It was tough. I used to sit on the beach alone for hours and hours together because now there are so many. बेटा हो गया तेरा फोटो खींच गया ना, बैठ जाना है, मेरे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. शाबाश, क्या नाम है तेरा? इसका भी गिविंग अप इज नॉट ए चॉइस. लेता जा रहा फोटो. आई एम ट्राइंग टू मेक यू फेमिलियराइज विद दिस concept of giving up is not a choice, and for that you have to be stubborn. These days there are so many things which distract us, in fact which is a disaster, because you have your phone, you have OTTs, you have malls, so you don't experience the desperation of a lonely person who is a gold medalist in drama school looking for work. You don't feel depressed, you don't feel sad, you don't feel lonely. So where will the hunger come out? I was hungry, but I was depressed. Every time I went to somebody's office, they said, no, nothing will happen.
because you don't have hair. No, you are very thin, sir. In fact, I was very thin. I was so thin that I could see through a keyhole with both my eyes. Imagine now. एक की होते दोनों आंखें देख रही हैं. काम नहीं मिलता था, चौल में रहता था. ये कहानी मेरी दुख की नहीं है, ये कहानी मेरी when I narrate my story to you, what I'm trying to tell you that all of us have gone through various stages. And because I looked at life from a comical sense of point of view, I never really felt so sad, so upset, because I used to see it as and I'm an eternal optimist. You have to be an eternal optimist. The definition of an eternal optimist is that nothing is all wrong. Even a clock that has stopped running is correct twice a day. एक घड़ी जो बंद हो गई है 11:30 बजे, तो दिन में 11:30 तो 2 बार बजेंगे ना. तो मैं लखनऊ से बॉम्बे आया था किसी एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सिखाने, और वो एड था. एड में शबाना आजमी जी, उनके वो थे क्या नाम, एडवाइजर नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, ये सब उनके एडवाइजर एड में था. मगर वो सच नहीं था, वो झूठ था. तो मुझे किसी ने कहा था कि हम तुमको लेने आएंगे, तुमको 5,000 रुपये हम तनख्वाह देंगे और एक रहने के लिए जगह देंगे. पर जब मैं लखनऊ से बॉम्बे पहुंचा तो 3rd of June 1981 को there was nobody at the railway station because it was a fraud ad. So finally a friend of mine made me stay in his house for 15 days. उसके बाद उसने कहा भैया मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं बहुत हो गया, अब तू कहीं और चला जा. So I found a place in Bandra East, a small chawl where there was a dhoban, a washerwoman was my landlady. तो उनका एक छोटा सा कमरा था जिसमें हम 4 स्टूडेंट्स रहते थे, और एक उनका किचन था, ऐसे पर्दे से सेपरेट होता था, जिस किचन में वो 4 लोग रहते थे. तो दूसरे दिन मैंने उस लैंडलेडी के हस्बैंड से कहा भाई मेरा एड्रेस क्या, जरा बताना तो सही, पिताजी चिट्ठी लिखेंगे तो किस एड्रेस पे लिखेंगे. तो जब उन्होंने मुझे लेटर दिया, वो अपना एड्रेस दिया, तो मैंने देखा और मैं जोर से हंसा, और मैंने मन में सोचा कि दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती कुछ बनने से. मेरा एड्रेस जानते थे? मेरा पहला एड्रेस मुंबई में क्या था? अनुपम खेर, 2/15, खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, बैंड्रा ईस्ट. तो कैसे नहीं कुछ होता मेरा. तो सारांश मिल गई, सबने मुझे कहा. इसी जो मीडियोकर लोग होते हैं ना, जो मीडियोकर होते हैं, वो आपको डराने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो आप में वो देखते हैं जो उनमें नहीं है. तो सबने कहा अरे तू बर्बाद हो गया, तू तो पूरी जिंदगी अब ओल्ड मैन. विद ऑल माई लव फॉर मिस्टर ए के हंगल, बार बार बोलते थे अब तो तू पूरा नेक्स्ट हंगल बनेगा. तो मैं सोचता था कि क्यों ऐसा कह रहे हैं. इट विल बी अप टू मी हाउ आई विल वर्क ऑन इट. सो इन फर्स्ट वीक, बिकॉज राजश्री पीपल हैड shown Saransh to so many people, in first week I signed 57 films. I have to tell you, in my whole 100 years of Kher Khandan, nobody had seen 10,000 rupees together. For Saransh, I was given 10,000 rupees, which basically meant 2,000 per month because it took 5 months to finish the film. But when I signed my first commercial film soon after Saransh, ironically that film's name was Jawani. तो मैंने कहा मैं सही जा रहा हूँ, बुढ़ापे से सीधा जवानी वाली नेक्स्ट फिल्म मिली. तो मेरा एक बंदा मेरे पास आ गया, बोला कि उसका नाम, मेरा नाम अशोक पंजाबी है, मैं आपका सेक्रेटरी हूँ. मैंने कहा आई विल हैव अ सेक्रेटरी नाउ. वाओ, सेक्रेटरी. ही वाज अ टिपिकल हिंदी फिल्म सेक्रेटरी. ही सेड आई एम टेकिंग यू टू रमेश बहल's हाउस. ऑफिस. रमेश बहल वॉज अ वेरी वेल नोन रोज मूवीज प्रोड्यूसर डायरेक्टर. बड़ी बड़ी उन्होंने फिल्में बनाई थी, कस्मे वादे, इंद्रजाल वगैरह वगैरह, अमिताभ बच्चन साहब के साथ. तो उन्होंने कहा इट्स ए कॉमिकल सीन. हाउ द सीन इज कॉमिकल? बिकॉज आई वॉज डिफरेंट बट नो लेस. तो उन्होंने कहा आई एम टेकिंग यू टू ऑफिस, यू लिसन टू योर रोल बट डोंट टॉक अबाउट द मनी. सर ओके. ही सेड आई विल पुट माय फुट ऑन योर फुट. इफ यू आर सेइंग समथिंग रॉन्ग आई विल प्रेस इट. I said, are you actually serious about this? He said, yeah. तो ऑफिस में रमेश बहल जी सामने बैठे, मैं यहाँ बैठा, अशोक पंजाबी यहाँ बैठे, और उनका पैर मेरे पैर पर.
तो रमेश बैल जी ने कहा कि 2 रोल हैं, उसमें से एक तुम चुन लो। एक मौसमी चटर्जी के ऑपोजिट है, एक शर्मिला टैगोर के ऑपोजिट है। अब उन्होंने रोल सुनाना शुरू किया, मगर मैं रोल नहीं सुन रहा, मैं सोच रहा हूँ मुझे कौन ज्यादा अच्छी लगती है, मौसमी चटर्जी या मौसमी चटर्जी की फिल्म देखी, शर्मिला टैगोर की फिल्म। जब उन्होंने सुनाना बंद कर दिया, मैंने कहा जी मैं शर्मिला टैगोर वाला रोल करूंगा। कहते नहीं, वो तो वो खुद कर रही है, तुम कौन सा कर रहे हो? मैंने कहा उनके अपोजिट मेरा रोल होगा, ठीक है। तो अशोक पंजाबी ने कहा कि कितने पैसे देंगे? तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा यार ये तो कमर्शियल फिल्म वाले राजश्री से भी बदतर है, ये 10,000 रुपए दे रहे हैं। तो उस पर अशोक पंजाबी के कहने पर रमेश बहल जी का रिएक्शन था, पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा 10,000 भी नहीं मिलने वाले, मुझे तो पता नहीं था। मैंने कहा जी ऐसा है, तो उन्होंने पैर दबाया। मैंने कहा आए। फिर एक अंदर से लिफाफा आया, उसमें कहा दिस इज 10,000 रुपीज कैश, यू आर साइनिंग अमाउंट। मैं पागल हो गया। एंड द अमाउंट फिक्स्ड वाज 75,000 रुपीज। तो अशोक पंजाबी ने कहा आप तू बाहर जा और घर जा, बाकी बातें मैं करता हूं डेट्स की। हिज ऑफिस वाज ऑन द लिंकिंग रोड। मुझे लगा लिंकिंग रोड में सब लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि इनको सबको पता मेरी जेब में 10,000 रुपया। मैं ऐसे आदमी की तरह चल रहा था। And the only person and the first person I wanted to tell that I've got 10,000 rupees, मतलब खेर खानदान के 100 years में किसी ने 10,000 अपने जेब में रखे नहीं, देखे ही नहीं थे। तो मैं अपने भाई को बताना चाहता था, who had shifted from Shimla and he was working in a tin factory. So I called up, मैं वहां टिन फैक्ट्री का काम चल रहा था, पब्लिक बूथ से। जैसे ही मैंने उसका फोन लगाया, एक दाढ़ी वाला बाहर खड़ा हो गया। मुझे लगा इसको पता है कि मेरी जेब में 10,000 रुपए। तो मैं उसको कह रहा था कि राजू 10 मिले, 10 मिले। कहना क्या 10 मिले? 10,000 रुपया मिला, शाम को हॉलीडे इन में मिलते हैं। उस दिन रात को मैं अशोक पंजाबी वो साइड पे बैठे बियर पी रहे थे, और मेरे 2-3 दोस्त और मेरा भाई, हमने हॉलीडे इन में बहुत खाया, ये चिकन तंदूरी, ये बियर, और मुझे लगा ये 10,000 रुपए तो इसी में खर्च हो जाएगा। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, द बिल वॉज 874 रुपीज। वो 10,000 रुपए हम एक कबड़ में रखते थे, और मेरा भाई का दिल करता था वो थोड़े निकालता, वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। आज मैं उससे बहुत ज्यादा पैसा बना रहा हूं, लेकिन वो 10,000 का मजा मुझे जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। So you have to look at your life from a film point of view. आप लोग या हम लोग आमतौर पे जिंदगी गुजारते हैं, मैं जिंदगी जीता हूं। गुजारने में और जीतने में फर्क है। So look at your life as if you are watching a film. Then everything you will make small changes. I look at my life from as if I'm watching a film. Even when I'm describing to you that scene, I remember Mr. Ramesh Bahal's office, I remember the road, I remember the Dadiwala's face, I remember what we were doing. Because you are a witness of your own life. And when you are a witness of your own life, you want to raise the standard of your life. But because you live your life, डॉली को मेरी बात सिर्फ समझ में आई, बाकी किसी को समझ में नहीं आई। डॉली, थैंक यू डॉली। So otherwise a small town boy, all of us do not know that our life has the possibility of a biopic. Everybody's life, everybody who is sitting in the front row, who is sitting there, somebody have a possibility of in the future becoming a biopic, and that biopic should have a good name. So if I was to ask you, if at some stage in life, my friend, what's your name? Shovik, if there was a film made on your life, what will be the name of that film? सब सोचो, मैं आ जाऊंगा किसी की बात करने। चल दो बंगाली में चलते रहो, वेरी गुड, चलो ठीक है, देखने को ना आएगा।
जितने भी लोग चल रहे हैं, नहीं, I didn't mean to. Ma'am, what will be the fantastic? So if somebody asked you that if there was a film made on your life so far, or maybe after 30 years, whatever, what would you like to call that film? I would say she lived. She lived. Fantastic. You see, you need to focus on yourself. वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम सब लोग डिफरेंट है। ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। उसका प्रूफ भी है। उसका प्रूफ ये है कि जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं वो दुनिया में उसके जैसे फिंगरप्रिंट्स किसी के पास नहीं है। So that means God or whosoever it is made you different. और फिर हालात ने आपको ऑर्डिनरी बना दिया, जबकि आपके पूरे चांसेस थे कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते थे। तो अभी भी टाइम है। I keep telling my father stories. My father at a very young age taught me a fantastic story. We are too scared of failure. So we are walking on a very balanced manner. We are too scared to make mistakes. But mistakes are important, because mistakes will tell you what not to do and what you should do. Because failure, so my father was an ordinary forest department clerk. ऐसा नहीं था। मेरे दादाजी थे वो बड़े संत किस्म के आदमी थे, पढ़े लिखे थे, योगा के टीचर थे, योगा प्रिंसिपल थे योगा इंस्टीट्यूशन। बट माय फादर वाज सुबह 8 बजे निकलते थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर चलते थे, काम करते थे, स्टोर के इंचार्ज थे, फिर शाम को आते थे और 14 लोगों का खाने का इंतजाम करते थे। सो ही हैड नो टाइम फॉर what he knew. He did not know what subjects I was doing. He did not know that I was bad at studies. बट हमारे स्कूल में और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको अपने स्कूल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके यू हैव टू गेट इट साइंड बाय योर पेरेंट्स. इज दैट स्टिल हैपनिंग? सो आई यूज्ड टू वेट फॉर माय फादर व्हेन ही इज वेरी बिजी दैट आई विल गिव इट टू हिम एंड ही विल से ओके 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 एंड ही विल साइन इट. So in my 9th grade, I was giving him my paper, my report card to sign, and then he suddenly remembered that he had forgotten the keys of his store in the office. So he went back and he had the time to look at the report card. You have come 59th in your class? I said, yes, Dad. How many students are there? I said, 60. So I thought now he never scolded me, he never sort of, no way of hitting me. But I thought, I was very upset to disappoint him. But he took a long pause. And he said, बेटा एक बात तो है, जो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है किसी भी फील्ड में, उसको हमेशा ये टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है. वो सेकंड भी आता है तो उसको लगता है उसका डिमोशन हो गया है. लेकिन जो 60 आता है या 59 आता है वो 48 आ सकता है, 36 आ सकता है, 21 आ सकता है. एक काम करना, नेक्स्ट टाइम 48 आ जाना. एंड रिमेंबर वन थिंग माय सन, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन. अब उनको मेरी हिंदी भी समझ में आ गई. So failure is an event, never a person. Event fails. When I was sitting inside, the mic guy was trying to fix it up. He said, no, sir, mic will go off. People around you will make you feel nervous. I said, I want to concentrate what I'm going to speak. No, sir, you change karna, mic change karna. So if today, right now, the mic fails, it is the event that has failed. I have not failed. We are too scared of failure. Too scared of failure. किसका फोन आया? किसका फोन है? बताओ किसका फोन? अबीन सनी, कार्स एडेप्टेबिलिटी है? हाँ अभी हेलो अभी don't call for next 1 hour. Okay, very busy, we are very busy, and Anupam Kher is talking to me right now directly. And I'm sitting in the front row. I'm wearing white shirts and white trousers, and I'm wearing shoes.
So he's constantly looking at me. Please don't, huh? You're laughing? You're enjoying? You're enjoying? हाँ. अनुपम here is talking to you. कुछ भी हो सकता दोस्त. Thanks to your friend. What is so important in life? I am talking about giving up is not a choice. He is also not giving up. And he thinks sitting in the front row is the subtlest person. He is not. Because he is doing. So be a witness to your life. This is not a great scene. But he will remember me for the next 100, 500 years. Because I gave him a memory. अब मेरा फोटो लगा होगा बिना हार के लगाना. इनके बेटे के बेटे और बेटी, उनके बेटे के बेटे, तो इनके 5 पुश्तों में डिस्कशन होगा. मैं पहली रो पे बैठा था, मेरे दादाजी मेरे परदादाजी पहली रो पे बैठे थे, अनुपम खेर ने फोन छीन लिया. We must give memories to people because that is also part of your biopic. So you have to look at your life from today in a different manner. Like, have you ever thought of if you were to describe yourself in one word? If you were to describe at this stage of your life in one word, what's your name? Okay. If you were to describe, we met yesterday. You were crying yesterday, huh? Why were you crying yesterday? माइक देना माइक है इनके पास. कल मुझे मिली वेल बाजार में, सडनली आई रिमेंबर दैट, एंड ये मुझे देख के इनकी आंख में आंसू थे. मैंने कहा कब मैं इससे पूछ नहीं पाया था कि ये क्यों रो रही है. आई हेल्ड हर वेरी क्लोज टू मी. And so if you were to describe yourself. If I have to describe myself, I'll say I'm unfinished because this is just. That's it. Because that's it. The word is unfinished, which is a fantastic creative thing to have. That means she's looking for something to finish. It's a great title of a biopic at this stage. But when she's 50, 60, then she will not say finished, happy, maybe happy. Sit down, please. Thank you. मेरा कुछ ऐसा, मैं कोई बहुत कमाल की बातें नहीं कर रहा, मैं आपका फोकस आप पर लाने की कोशिश कर रहा हूं. How do you focus on yourself? Because you are the hero or the heroine of your story. और आप अपनी स्टोरी में जूनियर आर्टिस्ट बने पड़े हैं जनाब. If you are considering yourself as an extra in your life, then you will remain an extra in your life or a junior artist. But you are a hero in your life. You look at it life. I used to always look at it life. Even when I was sleeping on the railway platform in Bandra East for 27 days, I was miserable. Because gold medalists, National School of Drama, Arthur Miller, Tennessee Williams, Mohan Rakesh, Dharamveer Bharti, Laurence Olivier, Marlon Brando, I used to read. I had read everything about Charlie Chaplin, everything. But because I had no money, I had no place, I was sleeping on a railway platform. I used to go to the bench at 1:40 in the night because that was the last local train used to go, and at 4:40 I used to get up. And I used to lie down and say, my God, it's a miserable life. But then I used to think, many years later, Mr. Kher, you will be telling this story in Goa at Iffy Goa 2050. So remember one thing, what does not happen in your life later on becomes the story of your life. So don't feel low, don't feel sad about it. Of course it will bog you down.
Why should life be easy? Why should life be simple? Why should not life not have problems? Because it's your problems which will make your biopic a superstar biopic. You read anybody. I used to read when I was a struggling actor. I don't like the word struggling. When I was an out of work actor, I used to read biographies of all the big men or big women. Ingrid Bergman biography, Charlie Chaplin biography, and I used to say, मेरी लाइफ इनके जैसी है. भैया जी कहाँ जा रहे हो? एक मिनट दादा किधर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? माइक लेके आना. सर्वाइवल है मेरा भैया. मेरे लेक्चर पे उठ के क्यों जा रहे हैं? पद्मश्री पद्म भूषण. Where are you going, sir? आराम. एक्चुअली मेरे 2 बच्चे यहाँ बगल वाले थिएटर में. और दूसरे थिएटर में कितने बच्चे? मेरे दो बच्चे तो बगल वाले थिएटर में हैं और 2 बच्चे. तो आप कहाँ जा रहे हैं? जस्ट मैं देखने जा रहा था. चक दे इंडिया में वो लोग. फिक्र मत करो, सब अच्छा जा रहा है. यहाँ बैठो, एंजॉय करो. तो आपने मेरी कुछ बातें सुनी कि नहीं सुनी? हैं, क्या सब बोला मैंने? आपकी ऊपर अगर फिल्म बनेगी तो उसका टाइटल क्या होगा? भटका हुआ राही. हाँ, ऐसा मत करो. मैं बार बार आपसे एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं. फोकस ऑन योर सेल्फ एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल. व्हाट इज बीइंग सक्सेसफुल? व्हाट इज पर्सनैलिटी? हम कहते हैं कि इस बंदे की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी. इट्स नॉट नथिंग टू डू विद लुक्स. पर्सनैलिटी मीन्स दैट यू आर कंफर्टेबल इन हु यू आर. कंफर्टेबल, यू नो. मैं सुबह सूट पहन के था. सूट पहना हुआ था मैंने, सीधे ब्लैक सूट विद व्हाइट शर्ट पहन के मैं निकलने लगा. मैंने शीशे में क्या अपने को नहीं, क्या है, पागल लगूंगा मैं? गोवा में वैसे ही लोग चिल्ड होते हैं. तो मैंने कहा मैं क्यों सूट पहन रहा हूं अपने आप को इंप्रेस करने. फिर मुझे लगता था नहीं, जब मैं कहीं लेक्चर देने जाता था, जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था या आउट ऑफ वर्क एक्टर था, मैं सोचता था जब मैं किसी फंक्शन पे जाया करूंगा तो मैं सूट पहन कर जाया करूंगा. पर मैं अब इतना कंफर्टेबल हूं अपने साथ कि I'm okay with wearing casual trousers etc. because I am the hero of my life. दूसरी चीज I think what you have to keep track of is that when you are right, fight for it. When you are right, don't worry about being. उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता था कि personality means you are comfortable with yourself. आप दूसरे को कंफर्टेबल करने में अपने आप को अनकंफर्टेबल करते हो. मेरे दादाजी एक बारी खाना खा रहे थे. मेरी माँ उनको खाना परोस रही थी और मेरे दादाजी खाते समय आवाज कर रहे थे. तो मेरी माँ ने उनसे बोला कि दादाजी क्या कर रहे हो आप खाना खाते समय? हाउ मच साउंड यू आर मेकिंग? ही सेड बेटा मुझे तो मजा आ रहा, प्रॉब्लम तेरी है. सो द अदर थिंग इज if you don't agree with somebody, it depends on that time, but tell the person, I'm sorry, but I don't agree with you. Because that is what makes you different. I have had innumerous, I'm very unpopular with certain kind of people because I have always spoken my mind. But you don't need to be popular with the whole world. You just need those 5-6 people, your parents, your husband, your wife, your friends, your brother, your sister, who will always be with you even if when you are wrong. But in order to be popular with everybody, you are constantly doing yes, absolutely. Yeah. You become again the extra in your life. Because आप अपनी लाइन बोल ही नहीं रहे हो. I'm sorry, I don't agree with you. I am the greatest admirer of Mr. Robert De Niro. The greatest for him once. मैंने ड्रामा स्कूल में उनकी 2 फिल्मों पर रिसर्च पेपर लिखा था. मीन स्ट्रीट्स एंड टैक्सी ड्राइवर इन 2nd year or 3rd year. रॉबर्ट डी नीरो इज द गॉड ऑफ एक्टिंग एटसेट्रा. फिर मैं हिंदी फिल्मों में आ गया. फिर मेरा दिल था कि यार अंग्रेजी फिल्म
अब मैंने हिंदी फिल्में कर ली, अब मैं अंग्रेजी फिल्में करना चाहता हूँ। बट मैं हिंदी मीडियम स्कूल से था, मुझे तो इंग्लिश बोलनी आती नहीं थी। इंग्लिश पढ़ लेता था मैं, इंग्लिश लिख लेता था, पर बोलनी नहीं आती थी। तो मैंने जब मैं काम ढूंढ रहा था तो मैंने अपने चाचा जी को, पंडित प्यारेलाल जी को मैंने लिखा। मैंने कहा दादाजी, चाचा जी, ये मेरे को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। इन मुंबई मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉम्प्लेक्स सा होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे आंसर पता है, मगर बिकॉज मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूँ तो इसलिए मैं चुप रहता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसको बोलना बहुत जरूरी है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सिर्फ इंग्लिश में बात करूंगा। तो मेरे सारे दोस्त 4 से 6 तक भाग जाते थे कि आ गया, अंग्रेजी में बात करेगा। बट आई लर्न, थैंक गॉड मैम, that I learned to speak English. Otherwise, I would have today you would have sort of not taken me in your film in a guest appearance. Now I have a role in your film. He's translating. Oh, you have a side actor in your film. तो मैं ये मैंने अंग्रेजी पे, फिर मुझे लगा कि यार मेरी अंग्रेजी फिल्म में करना चाहता हूँ एज एन एक्टर। आई थिंक आई एम एन इंटरनेशनल एक्टर, बट व्हाई एम आई नॉट वर्किंग? सो देन गुरिंदर चड्डा's Bend It Like Beckham happened to me. और thanks to her, that was my first English language film. I have done a film in every Indian language except for two languages. I've done Tamil, Malayalam, Telugu, Bengali, every language, because I'm not scared of failure, because failure is an event, never a person. ओशो की एक बड़ी अच्छी लाइन है, ओशो की, आचार्य रजनीश की, कि if you try, you risk failure, if you don't, you ensure it. क्या कमाल की लाइन। तो मैं ट्राई करने से तो कभी नहीं कर रहा था। फिर मेरा दिल किया, फिर मैं टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में था। आज हम एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में मैं था, और मैं जब अपने होटल से बाहर निकला, और मेरी एक फिल्म थी वहां पर। आई वॉज इन द पार्ट ऑफ अ फिल्म फेस्टिवल, देयर वाज अ फिल्म ऑफ माइन व्हिच वाज रनिंग देयर। तो मैंने देखा कि रॉबर्ट डी नीरो किसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो मैं पीछे भागा। तब तक मैं 400 फिल्मों से ज्यादा फिल्में कर चुका था, मगर अरे इनके ऊपर मैंने पेपर किया, पीछे भागा, मगर वो चले गए। फिर एक दिन मैं राजस्थान में जोधपुर के पास एक छोटे से गांव में एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। तो गांव मतलब छोटा गांव था, एक हवेली थी और गांव था। तो मुझे एक मैसेज आया कि मेरी एजेंट का फ्रॉम लंदन, कि देयर इज ए फिल्म बीइंग मेड, सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, एंड देयर इज अ रोल फॉर यू इन दैट फिल्म, बट द डायरेक्टर वांट्स टू ऑडिशन यू। तो मैंने कहा, व्हिच हु इज द डायरेक्टर? शी सेड डेविड ओ रसल। और डेविड ओ रसल की मैंने द फाइटर देखी थी अभी कुछ 2 महीना पहले। मैंने कहा, व्हाट अ डायरेक्टर। मैंने कहा, हु इज इन द फिल्म? शी सेड ब्रैडली कूपर इज देयर, जेनिफर लॉरेंस इज देयर, क्रिस टकर इज देयर, एंड रॉबर्ट डी नीरो इज देयर। ऑडिशन क्या है? कहती ही वांट्स टू डू स्काइप विद यू। तो मैंने कभी स्काइप किया नहीं था, ये सिर्फ 8-10 साल पहले की बात है। तो मैंने अपने एजेंट को बोला कि स्काइप लेकर आओ। मुझे लगा स्काइप कोई चीज है। तो फिर उन्होंने कहा, नहीं जी स्काइप यहां से नहीं आएगा, वो जोधपुर जाना पड़ेगा, वहां से आएगा, कनेक्शन लगेगा। तो पूरे गांव में ये फोकलोर बन गया, स्काइप आ रहा है, स्काइप आ रहा है, स्काइप आ रहा है। फाइनली स्काइप आ गया, ऐसे एक लैपटॉप सा आ गया। तो मैंने अपनी लाइनें वाइनें याद कर ली, मैंने वो आसपास भी लगा ली उसके, ताकि मैं पढ़ के बोल सकूं, बिकॉज इंग्लिश में आई डोंट थिंक इन इंग्लिश। सो फॉर मी टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश, आई फर्स्ट रिहर्स इन माई माइंड एंड देन आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज आई थिंक इन हिंदी। तो वो बैठे, तो मैं इस तरफ बैठा था, लैपटॉप यहां था, मैं यहां कुर्सी पे बैठा था, आधा गांव उस तरफ बैठा था। स्काइप आ रहा है, तो हम फिर स्काइप पे बात करने वाले। तो थोड़ी देर बाद डेविड और रसल उस पर आए, और तो उन्होंने कुछ बोला, मगर साउंड काम नहीं कर रहा था। तो मेरी भी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी, उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। तो उन्होंने पेपर पे लिखा, ऐसे कुछ लिखा, मेरे को दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने ऐसे किया, उस पर लिखा था, बी मोर प्रोफेशनल नेक्स्ट टाइम। मैंने कहा, 1 मिनट रुको, मिस्टर डेविड और रसल, गूगल सर्च मी, आई एम द बेस्ट एक्टर इन द कंट्री। क्योंकि गलत बोल रहे थे।
मेरे से ज्यादा प्रोफेशनल एक्टर कोई नहीं था। मैं तो भट्ट साहब को शराब दे चुका था, तेरी बारी अब। तो डिसाइड हुआ कि वो हंस पड़े जब मैंने देखा गूगल सर्च में, तो कहते ओके ओके। तो नेक्स्ट डिसाइड हुआ कि टोरंटो में फिर फिल्म फेस्टिवल में वो मेरे साथ फिर स्काइप करेंगे। तो मैं टोरंटो पहुंच गया और वहां पर एक जमील जो बांग्लादेश का ये था अपना रूम सर्विस का लड़का, वो चाय लेने, उसके लिए मैं रॉबर्ट डिनीरो था। दादा दादा कमाल एक्टर, दादा आपका गर्मा देखा, डायलॉग सुनाओ, आपका ये देखा वो देखा दादा। तो ही वॉज वेरी एनामर्ड बाय मी ऑब्वियसली। सो अब बेडरूम में मैंने अपना स्वीट था मेरे पास, अब मैं स्टार, तो मेरे पास स्वीट था। तो बेडरूम में मैंने फिर वो लैपटॉप लगाया हुआ था और जमील जो है वो सिटिंग रूम में चाय बना रहा था। तो अभी बेडरूम में स्काइप शुरू हो गया, फिर साउंड का प्रॉब्लम हो गया। फिर उन्होंने मेरे मोबाइल पर फोन किया, उन्होंने कहा अनुपम इफ यू डोंट सेंड मी द योर ऑडिशन बाय टुनाइट प्लीज थिंक आई एम नॉट कंसिडरिंग, दिस इज रिडिकुलस, हाउ कैन यू डू दैट। तो मैं बड़ा उदास होके सिटिंग रूम में आया। तो हम साउथ एशियन एशियंस की आदत है और इंडियंस की तो सबसे ज्यादा आदत है कि, तो जमील ने पूछा क्यों बोला दादा, तो मैंने अपनी सारी कहानी सुना दी। मैंने कहा यार रॉबर्ट डिनीरो, को कोई पता नहीं था रॉबर्ट डिनीरो सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक। मैंने कहा उसकी पिक्चर मेरा पूरा चांस था और अब मुझे कोई पर नो प्रॉब्लम, मेरे पास आईफोन 4 है, मैं शूट करता हूं। एक वेटर बांग्लादेश का जमील मेरे को शूट करेगा। मैंने कहा ओके, लेके था मैं गया वो रूम सर्विस। तो मैंने उसको कहा कि जमील लिसन, व्हेन आई डू दिस यू से एक्शन, व्हेन आई डू दिस देन यू से कट। तो मैं तैयार हो गया, अपना फोकस किया मैंने। तो मैंने क्या ऐसा कहता एक्शन दादा। तो मेरे कंसंट्रेशन की ऐसी तैसी हो गई। फिर भी जैसे तैसे मैंने अपना डायलॉग बोला और बड़े मुश्किल से मैंने बोल दिया। फिर मैंने जब ऐसे कहता कट दादा, तो मुझे नहीं पता था अब इसको ये निकाल देना चाहिए, ये निकाल देना चाहिए। तो मैंने वो उसको जैसे लिंक बना के उसने मुझे भेजा और मैंने वो मिस्टर रसल को भेज दिया। तो उसका फोन आया नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ही सेज दिस इज फाइन बट व्हाट द इज दादा। मैंने कहा दादा इज एल्डर ब्रदर इन बंगाली। ओके ओके। सो मेरा डिसाइड हो गया कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ। फिलाडेल्फिया पहुंच गया मैं, 5 दिन पहले पहुंच गया फिलाडेल्फिया में। और वहां पर मैंने पहुंचा और मैंने एक एक सीन, मेरा पहले सीन मेरे ब्रैडली कूपर के साथ थे, एक एक सीन में मैंने सोचा यहाँ मैं ऐसे मुंडी करूंगा। मुझे लगता था अंग्रेजी फिल्म में जैसे एक्टर काम करते हैं, बड़ा कैजुअल एक्टिंग करते हैं, यू नो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट नॉट द थिंग एंड दिस दैट आई पर्सनली फील। तो मैंने कहा ऐसी एक्टिंग मैं करूंगा और ये पागल हो जाएंगे मेरे को देख के। तो मैंने पूरी तरह तैयार किया। मेरा सीन शुरू हुआ तो मैं ऐसे कुर्सी पे बैठा, जैसे मेरा सीन हुआ मैंने कहा या आई फील दैट इफ यू वांट टू डू दैट। तो डेविड रसल मेरे पास आया, कहता मिस्टर डूड आई ऑलरेडी हैव अ डिनीरो इन द फिल्म, यू डोंट हैव टू एक्ट लाइक हिम, ओके ही विल डू दैट एक्टिंग, यू डू योर एक्टिंग। बड़ी बेइज्जती कर रहा है यार, पर यूनिट में कोई इंडियन नहीं था इसलिए मैंने ठीक है। तो फिर मैंने लुक इनटू हिज आईज, यू आर अ साइकियाट्रिस्ट, जस्ट लुक इनटू हिज आईज, परफॉर्म कम्युनिकेट, साइकियाट्रिस्ट जॉब इज टू कम्युनिकेट कर दिया। पर मेरे को था कि मिस्टर डिनीरो के साथ मेरा सीन कब होगा। तो एक दिन पता लगा कि डिनीरो साहब के 2 बजे आ रहे हैं। तो मैं घर से मतलब इंडिया से उनके लिए एक रूबी का गणपति लेकर गया था। तो और गणपति मैंने रखा था और मैंने कहा उनको दूंगा, बिकॉज मेरे लिए तो गॉड ऑफ एक्टर्स है। तो मैं पहुंचा और मैंने अपने प्रोडक्शन वाले को कहा कि आई वांट टू मीट मिस्टर डिनीरो बिफोर sort of he goes on the sets. So he said no, Mr. Bob does not meet anybody. रॉबर्ट को वहां बॉब बोलते हैं, तो बॉब डज नॉट मीट एनीबडी बिफोर। तो मैं तो हिंदुस्तानी था, मैं पीछे पड़ गया, नो नो आई हैव टू मीट, आई गॉट गणपति। तंग आ गया। तो उसने जाके बोला हुआ यार इंडियन एक्टर है, गाया हुआ पागल है, तो बुला रहे हैं। तो मैंने उसमें ट्विटर पे एक वो भी किया था, कंपटीशन भी किया था, विच आर योर फेवरेट फिल्म्स ऑफ रॉबर्ट डिनीरो बिकॉज आई एम गोइंग टू बी वर्किंग विद हिम इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। तो सब लोगों ने भेजा ये फिल्म है, ये फिल्म है, ये फिल्म है। फिर उनके मैं वैन के पास पहुंचा, उनकी वैन यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, एंड ही वाज स्टैंडिंग, ही वाज सडनली लुकिंग अ लिटिल स्मॉलर देन आई हैड थॉट ऑफ हिम।
तो मैं उनको देखा, अब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इसको ध्यान में रखना है। तो मेरी आंख में आंसू थे कि फाइनली मैं कहां किस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि मैं फाइनली डिनीरो साहब के साथ एक्ट करने वाला हूं। तो उन्होंने कहा व्हाई यू व्हाई इज दिस। तो मुझे उनको कहना था कि भाई मैं आपके साथ काम, मैंने कहा आई एम वेरी मूव्ड बाय माय जर्नी। He said, means? I said, a small town boy, forest department clerk from Shimla in front of you. What a journey. मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा दिस इज गणपति। तो मैंने उनको गणपति, हमारा सीन में भी था गणपति। मैंने कहा आई एम ऑल्सो डूइंग ए क्विज ऑन द ट्विटर। तो एक्टर ही होता है, चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे बाहर का। तो उन्होंने कहा सो व्हाट आर द फिल्म दे आर सेइंग। अच्छा जी गॉडफादर कह रहे हैं और 50 फिल्में कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अवेकनिंग नहीं कह रहे हैं, बिकॉज उनकी अवेकनिंग उनकी फेवरेट फिल्म थी। मैंने कहा उन्होंने एक दो ने कहा, फिर मैंने उनके हाथ फोटो खिंचाई और डाल दिया। अब जो सीन जो है ना उसमें सीन ऐसा था कि हम 4-5 लोग, ब्रैडली कूपर उनके बेटे का रोल है, मैंने वो आधा चेहरा रेड ग्रीन किया हुआ था बिकॉज हम ईगल्स के फैन थे, फुटबॉल ईगल्स के, और हमको वहां जाना था और 8 लोग थे। मेरे उस 13 पेज के सीन में सिर्फ 3 लाइनें थी, एक फ्रंट पेज फर्स्ट पेज पर, एक 8th पेज पर, एक 13th पेज पर। और मैं बड़ा खुश था कि मुझे डिनीरो के साथ इतने सारे कलाकारों के साथ सीन करने को मिल रहा है। तो जब सेट पे पहुंचा तो डिनीरो साहब दूसरे अंदाज में थे। ही वॉज इन द कैरेक्टर, ही वॉज वर्किंग आउट एंड ही वॉज थिंकिंग आउट एंड एवरीथिंग। देयर वाज यूनिट ऑफ 150 पीपल एंड सडनली ही टोल्ड डेविड, मिस्टर डिनीरो, डेविड, व्हाई द हेल विल आई टॉलरेट दिस इंडियन डॉक्टर इन माय हाउस? तो डेविड ने कहा मतलब व्हाट डू यू मीन? He said, this guy has been the cause of my son getting drunk. He could have gone back to mental asylum. So why will I tolerate him in this house? So David ने पूछा, what do you want to do? He said, I will throw him out of the house. मैंने कहा क्या कर रहा है? मैंने इसको गणपति का मुंह किया है और ये मुझे निकालने के चक्कर में। But his point of view was right. From his character's interpretation, he was right. So उन्होंने कहा ओके चलो रेसल करते हैं। तो मुझे लगा गुस्सा होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ा और उन्होंने कहा यू इंडियन डॉक्टर, यू ब्लडी, यू कुड हैव सेंट मी दिस एंड दैट एंड दैट। उन्होंने दरवाजे से बाहर फेंक और अंदर से चिटकनी लगाई। अब मैं नंगा, हाँ मतलब आधा नंगा, यहाँ पर एस लिखा हुआ एंड आधा चेहरा, और मैं बाहर खड़ा हूँ 45 मिनट तक। ठंड है, मेरे पास कोई कंबल भी नहीं देने आ रहा बिकॉज मिस्टर डिनीरो ने बाहर फेंका है। फिर जब वापस हुए, सीन विन खुला, उन्होंने कहा ओके आई थिंक दिस इज वर्किंग ओके, बट डेविड सेड दैट बट दिस कैरेक्टर मिस्टर डिनीरो इज इन माय माइंड फॉर द लास्ट 2 years, सो आई थिंक आई नीड वन मोर रिहर्सल। नाउ प्रोड्यूसर्स वर गेटिंग फेड अप बिकॉज टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है। उन्होंने फिर एक रिहर्सल की, फिर उन्होंने मुझे पकड़ा एंड यू गेट आउट आउट। मैं बाहर खड़ा हूं। फिर पद्मश्री 500 फिल्म्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्टर प्रिपेयर्स मुंबई, 2 नेशनल अवार्ड्स, 8 फिल्मफेयर अवार्ड। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर दरवाजा खुला और डेविड ने कहा कि दिस इज फाइन, दिस इज वर्किंग। पर मेरे दादाजी कहते थे कि इफ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबडी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। मेरे अंदर वो आ गया। मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा सॉरी डेविड। मैंने मन में सोच लिया मुझे काम ही नहीं करना है, पर मैं अपने मन की बात बोलना चाहता हूँ। मेन पॉइंट में आपको अब बताने वाला हूँ। तो मैंने कहा डेविड नो आई विल टेक 5 minutes बट आई मस्ट से व्हाट आई वांट टू से। तो पूरा यूनिट बैठा हुआ है, ब्रैडली कूपर, क्रिस टक्कर और ये सब बैठे हुए हैं, और डेविड अपना मिस्टर डिनीरो मेरे सामने बैठे हैं, ये सब यहाँ बैठे हैं। जेनिफर लॉरेंस कोक पी रही है, कुछ पी रही है, और एक मैगजीन देख रहे हैं। क्रिस टक्कर वहाँ खड़े हैं और उन्होंने कहा या अनुपम मत इरिटेटेड, या अनुपम व्हाट डू यू वांट? आई सेड with all my respect, there are 8 characters in this scene. अब मैं ट्रांसलेशन में गलत कर रहा हूं। मेरा मतलब उनकी इज्जत करना ही था, बट ट्रांसलेशन में मैंने कहा there are 8 characters David in this scene. Why are we listening to only one interpretation? So there was a pin drop silence. तो अब चूंकि सब चुप, मैंने कहा I also have an interpretation. But you did not ask me.
तो उनको बोलना पड़ा, so what is your interpretation? I said, my character will say to Mr. De Niro's character, you so and so, it is because you brought up your son in this manner that he turned out to be a mental problematic thing, but it is this Indian doctor who has made him fine. So, ये पहला. Number 2, you said, गलत बोल रहा हूँ, पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी कुछ करना ही नहीं, मुझे काम करना ही नहीं हॉलीवुड में. Number 2, you said this character is in your mind for the last 2 years, and you are ready to throw me out of the scene. Is it because Mr. Robert De Niro has told you? तो सारे ऐसा लग रहा था कि बर्बाद है सब. सिर्फ क्रिस टक्कर ने मुझे देख के कहा, Third, I have done this film for this scene. I'm not getting out of this scene. सब लोग मिस्टर De Niro को देख रहे हैं. De Niro साहब ने कहा, let's do one more rehearsal. He's a method actor. So this time he did not throw me out, but he said whatever he wanted to say. And वो 3 में से दो लाइनें रह गई थी. But बाद में रात को 2:30 बजे उन्होंने मुझे अपनी वैन में बुलाया और वो ऐसे कुछ कर रहे थे, ऐसे कुछ डाल रहे थे ग्लास में कुछ. तो उन्होंने कहा, आई हैव ओनली वोडका. मैंने कहा, ये मुझे वोडका पिलाने के चक्कर में है. तो मेरे फिर अंदर का अंग्रेज निकल आया. मैंने कहा, सर फ्रॉम योर हैंड्स आई विल टेक पॉइजन ऑल्सो. उन्होंने कहा, आई डोंट हैव पॉइजन. फिर उन्होंने मुझे ग्लास देके कहा, वेल डन इन द सीन. और उसके बाद आज हम और बिकॉज आई वॉज ट्रूथफुल एंड नॉट वरिंग अबाउट बीइंग अनपॉपुलर विद दिस यूनिट, टुडे आई कैन क्लेम दैट मिस्टर रॉबर्ट डे नीरो इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है. इसलिए हमको सिकंदर और पोरस की कहानियां बताते हैं ना, कि पोरस ने सिकंदर से कहा था कि वही जो एक राजा को दूसरे. सो अगेन पॉपुलैरिटी के चक्कर में मत पड़िए. मैंने बेंडिट लाइक बेकम जो है वो 5,000 पाउंड में की थी. दूसरी फिल्म बनाने वाले थे सेम दीपक नैयर जो उसके प्रोड्यूसर थे. उन्होंने कहा, वो मेरे को मिलने आए अपना मैरियट में उधर कॉफी शॉप में ब्राइड एंड प्रेजुडिस की शूटिंग के दौरान, और उन्होंने कहा कि कितने पैसे लोगे. तो मैंने कहा कितने पैसे दोगे. उन्होंने कहा उतने जितने ब्राइड एंड प्रेजुडिस में दिए थे. मैंने कहा, अरे तुमने वो फिल्म 100 मिलियन बनाई, व्हाई विल यू गिव मी ओनली दैट मच मनी. हम सब लोग बैठे हुए कॉफी शॉप में भरा हुआ है. और तो उन्होंने कहा, नो वो मे बी 1,000 मोर. तो मैं टेबल पे चढ़ गया. सुबह 10:30 बजे मैरियट पे टेबल पे मैं चढ़ गया और मैंने कहा, हेलो फ्रेंड्स, दिस गाय इज दीपक नैयर. He is the producer of Bend It Like Beckham. For that he gave me 5,000 pounds. Now he wants to make another film. He made 100 million. बैठ जा. मैंने कहा, no, he doesn't want to give me full money. पैसे दे रहा पूरे कि नहीं दे रहा? उन्होंने कहा, दे रहा, बैठ जा. Again to look at it from a corner, because giving up is not a choice. I made Tanvi the Great with lot of love, lot of passion. People loved the film. We showed it to the president, the army chief. We did the world premiere in Cannes. We went to New York. The film did not do well, but I have not given up. I've re-released the film and it's in its 9th week in limited theaters. Because giving up is not a choice. Never. मैंने दुनिया में सबको, सारे जर्नलिस्ट वगैरह सबको बोला, मुझे वेटरन, थेस्पियन या लेजेंड मत बुलाइए, बिकॉज दैट इज देयर वे ऑफ टेलिंग मी आपने बहुत काम कर लिया, अब हम आपको वेटरन बुला रहे हैं, थेस्पियन बुला रहे हैं, लेजेंड बुला रहे हैं, अब आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले लो और उसके बाद सनसेट में चले जाओ. मैं अगले 20 साल तक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं लेने वाला. आई एम ऑलवेज अ न्यू कमर बिकॉज यू कांट डिसाइड व्हाट आई शुड डू. So friends, if you want your life to be witnessed, make it worth it. And it is possible. It is not a lecture. I have just shared my life with you. Everybody has a lifestyle. Everybody. The difference between ordinary and extraordinary is that little extra.
that put that little extra into your life. Today, write down in your copy, anywhere on your phone, notes mein, the title of my film today is this, and after 10 years it will be this. Compare routine. Get out of this comfortable zone. To feel sad and low is the easiest thing in the world. Of course, I feel sad so many times. The film did not do well. I felt sad about lots of things. In 2002, I almost went bankrupt because I had this dream of becoming a TV tycoon. In 2002, my house, my office was both mortgaged. Then I did a play based on my life, kuch bhi ho sakta hai, and about my failures. So I am the success story of my failures. You can be the success story of your ups and downs. Because कौन आपका क्या उखाड़ लेगा? सॉरी रुपए रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं, सच बोल रहा हूं मैं आपको। मैं आसानी से रो पड़ता हूं बिकॉज आई लिव लाइफ, आई डोंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ। मैं आसानी से हर चीज को महसूस कर लेता हूं। मेरे फादर कहा करते थे, द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी। आई जस्ट फॉलो हिज डिक्टेट। आई लुक एट माई लाइफ फ्रॉम ए कॉमिक। यू शुड लुक एट योर लाइफ फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. You should look at your life from a point of view of that you are the hero or the main character of your life, and your film has to be a blockbuster, because film of your life is a blockbuster. बहुत कुछ बातें कर सकता हूँ, but I thought I must leave some time for our Q&A. मुझे यहाँ पर वो टाइमर भी नहीं है. हाँ, मेरे ख्याल से बहुत परफेक्ट. मैंने 12:46 पर ये अपना, मैं बहुत कुछ बोलने का दिल करता था, बट लेट मी सम इट अप. बट दैट मैं आप यहाँ से जा रहे हैं बड़े जोश से. मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे आपके शक्ल से, आपके आवाज़ से मुझे लग रहा है कि अच्छा आपको लगा, बिकॉज मैंने आपसे तारुफ कराया. आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू योरसेल्फ. कुछ मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया. हम भूल जाते हैं कभी कभी. और जिस रास्ते पर कोई और चला हो उस पर मत चलिए, क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी कदमों के निशान हैं. उस रास्ते पर चलिए जहां आप अपने कदमों के निशान बना सकते हैं. और रास्ता कठिन होना चाहिए. रास्ता कठिन होना चाहिए. उतार चढ़ाव होने चाहिए. स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए. कांटे होने चाहिए. वरना क्या फायदा कि आप मंजिल पे पहुंच गए और आपने देखा कि रास्ता तो बड़ा स्मूथ था. तो लगना चाहिए मैंने ये क्रॉस किया, मैंने ये, और यहां से यहां पहुंचा. बिकॉज इन द एंड योर हार्ट ब्रेक्स, योर लो पीरियड will become the stories to share, like I did this after 41 years being in this. बताइए क्या पूछना चाहते हैं. हम पूरे भारत आपके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे देश के पास ऐसा महान कलाकार है. तो बॉटम ऑफ माय हार्ट ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू. मुझे बस ये कहना है कि कई बार एक्टर होते हैं कि बड़े एक्टर उनसे जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट आपने वो गट्स दिखाई देनेरो के सामने. वो गट्स कहाँ से, मतलब जो भी हो, बट बहुत मुश्किल होता है एज एन एक्टर. मैं समझता हूँ कि जिसके आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उन सबके सामने उस तरीके से जाके अपनी आवाज को उठाना. मैंने बहुत नम्रता से, प्यार मिस्टर डिनीरो के लिए है, जो इज्जत मिस्टर डिनीरो के लिए है वो हमेशा रहेगी. अगर एज एन एक्टर मेरे पास पॉसिबिलिटी होती तो मैं उनका फोटो लगा के रखूंगा. मगर जब मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहता था तो मैंने अपने दादाजी को चिट्ठी लिखी. मैंने कहा, दादाजी क्या है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ड्रामा स्कूल से, मेरी लाइफ कितनी गड़बड़ है. मैं रेलवे स्टेशन में सोता हूँ, मेरे को काम नहीं मिल रहा है, मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू बी एन एक्टर इन दिस सिटी डज नॉट डिजर्व मी. तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी मेरे किरण के एड्रेस पे, जब मेरी उन दिनों बेस्ट फ्रेंड थी. उस चिट्ठी में एक लाइन थी जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, और आपको भी वो लाइन अच्छी लगी. उन्होंने लिखा कि बेटा, तूने बहुत मेहनत की है, तेरे माँ बाप ने अपने बहुत सारी चीजें बेची हैं तुझे पढ़ाने के लिए, तू थोड़ी देर, 1 साल और ऑलरेडी रुक चुका है, और रुक जा, और याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता.
Thank you so much. क्या बात है, क्या लाइन। तो whenever I go through bad times, मुझे उनकी वो लाइन याद आती है कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। आप सब भीगे हुए हैं, आप बारिश से मत डरिए मेरे दोस्तों। हाँ जी, आपके दोस्तों की तस्वीर लगी होगी जो आपके साथ रूममेट में थे या जो भी थे, और आप अपने बच्चों को कहेंगे अरे मेरा दोस्त था एक जमाने में ये। यू वांट टू डू दैट, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। इफ गिविंग अप इज नॉट ए चॉइस एंड यू आर ट्राइड योर लेवल बेस्ट। पर मैं ये कहता हूं, अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं एक्टर प्रिपेयर में, कि चलो मान लो यार आपका कुछ नहीं हो रहा है, फिर तो घर जाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, और एक ऐसी कहानी बन जाओ जिसको कोई याद नहीं रहेगा। बट इसके गिविंग अप इज नॉट चॉइस इज नॉट ओनली ए फ्रेज, इसके पीछे हार्ड वर्क है, अनबिलीवेबल हार्ड वर्क है। मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूं, सुबह से लेकर रात तक मैं काम करता रहता हूं। मैंने कभी छुट्टी ली नहीं। मैंने लास्ट मंथ पहली बार जिंदगी में छुट्टी ली है 5 दिन की। तो आई थिंक इफ यू वांट समथिंग you have to sacrifice and you have to tell yourself, no, I'm sorry, disappointments will happen, depression will happen, sadness will happen, but if you give up, the stories end has happened before interval also, before पहली रील में ही आपने अपनी स्टोरी बंद कर दी। नेक्स्ट, थैंक यू। हाँ जी, यस सर, आप अपना सवाल पूरा करें। मैं बेंगलुरु से गौरी शक्ति, मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डायरेक्टर। कि मैं ऐसे जमघटे में खो गया हूं जहां मेरे सिवा कोई नहीं है। खुली है खिड़कियां हर घर की, लेकिन गली में झांकता कोई नहीं है। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। तो ये सिचुएशन आती है। मैं जानता हूं कि जिंदगी की मुश्किलातें, शायद मेरे पास इस समय स्टेज पर ये लेक्चर देना आसान है, मगर मैं आपको सच कह रहा हूं और कसम खा के कहता हूं कि मैंने बहुत प्रयत्न किए, अभी भी बहुत प्रयत्न करते हैं। सफल इंसान जो जरूरी नहीं है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, मगर यू हैव टू चूज टू बी हैप्पी पर्सन एंड ऑप्टिमिस्टिक। आप भेजिए, बहुत सारे लोग हैं, इफी में भेजिए। अगले साल मैं चाहूंगा कि आपकी फिल्म बनी हुई हो आपके स्क्रिप्ट पर, और मैं मंच से या आप मंच पर हो और मैं आपके लिए ताली मार रहा हूँ। थैंक यू सर। कभी कभी जो होता है तो मोबाइल बोलती है कि ये रद्दी कब तक रहेगा, हर्ट होता हो कि वो रद्दी तब तक जब तक हो ना जाए। थैंक यू सर। टॉट मी अननोइंगली। ये किताब छप चुकी है, आप बाजार से खरीद सकते हैं। 2 साल पहले बेस्ट सेलर है। ये तो ज्ञान आया है, लाइफ को देखता रहता हूं मेरे दोस्त। सर पे हाथ, एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। शी डिड नॉट नो फॉर 6 months दैट शी वाज डूइंग द रोल। आई यूज्ड टू, बिकॉज आई डिड नॉट हैव एन आइडिया हाउ विल फिजिकली माय तन्वी लुक, बिकॉज जो मेरी तन्वी जो नीज थी वो अलग थी। सो मैंने जब फाइनल कर लिया कि शुभांगी को लेना है फिल्म में, आई यूज टू सेंड हर, माई ऑफिस यूज टू सेंड हर ऑडिशंस एंड वी यूज टू से सेंड इट बैक इन 2 hours. For 6 months she did not know why is she sending us auditions. After 6 months when we told her that you are Tanvi in Tanvi the Great, she couldn't believe it. And then we sent her to Tejpur to meet my niece, and she stayed there with her for 15 days, and from there she wrote to me. She said, Mr. Kher, what am I supposed to observe about your niece Tanvi? I said, her soul. I want you to capture her soul. Super. And she has done a remarkable performance. Absolutely. I think she is one of the best. That is, at least this performance is one of the best performances in the world, according to me. And I'm saying it as a teacher, not as a director. Yeah, sir. Last Yes, question, sir. sir. सोच रहे थे अगर हमारे मूवी का टाइटल होगा तो इट विल बी हैप्पीनेस अनटोल्ड, एंड रियली ग्रेटफुल सर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने मिली है। खाली एक और रिक्वेस्ट हम जरूर करेंगे सर, जैसे आपने तन्वी द ग्रेट से शुरू की है, जितना हो सके उतना हम फिल्म के माध्यम से we can describe more and more dignity towards persons with disabilities. That will be really great, sir. So thank you. So thank you so much. I must say that visually you may be impaired, but you have the biggest vision in the audience, and I applaud that vision of yours. जिस तरह से आपने एक्सप्रेस किया, आप इसलिए वो सब देख सके क्योंकि मैंने वो जिंदगी जी है। There is nothing fabricated in my life that I narrated, because when you are telling the truth, you don't have to remember it. You just have to tell the truth. But thank you for your kindness. Hello, sir. Sir, go ahead for me. Yes, yes. Okay, thank you. So first of all, sir, thank you Gauri, so much. we are just finishing it in 5 minutes.
One more question after this, and come here and tell them. This is Gauri. She's done a great job in making these master classes possible. She has a very small team, and she's very hardworking, and I really applaud her hard work. God bless you. One more question. After this, one more question. Yeah. You are happy with my session? Sir, we are Okay, sir. Okay. we are just honored listening to your classes and session, and you are the only session that every year we are coming to you and requesting and making sure we have one slot. Let's clap for her and her team. I will just finish that. Thank you so much. चलिए आप पूछिए अपना सवाल. Yes. Now the question behind it is when you said that आप मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए. So my initial idea was that I'll shoot the film with an iPhone probably if I'm not able to afford like a professional camera. So do you think that is going to be acceptable with festivals like absolutely. There are so many directors, very high profile directors are shooting 4G, 8G. बन सकते हैं, आराम से बन सकती है. नहीं बन सकती है, but is that acceptable? होगा, of course acceptable होगा. The screens are very very compatible to 4G in this. Not to worry about that. Okay, thank you so much. Sir. Thank you. सर पीछे ही है. Actually, my dad is a editor of NFDC. अच्छा, उन्हीं से मतलब हाँ, घर में कलेश पड़ा हुआ है. I'll speak to him. Yes, ma'am. Yes, young lady. So, I am a weightlifter. I am also coming from a sports background. So, when giving up is not a choice, ये जो topic है, I divide it into two factors. Like when it comes physically giving up, वो तो push हो ही जाता है. But mentally giving up, ये जो पॉइंट आ जाता है किसी भी स्पोर्ट्स एथलीट के दिमाग में, इट गेट्स वेरी टफ. सो व्हाट विल यू एडवाइज? I think when the World Cup was won by our ladies, that was such an amazing moment. देखिए, ऐसा कोई भी जिंदगी में नहीं है जिसकी जिंदगी में बुरा वक्त नहीं आता है. आपकी ताकत वो होती है कि बुरे वक्त में आपका जो माइंड है वो कैसे काम करता है. हर इंसान में, तो पुरानी फिल्मों में एक काली साड़ी पहन के लेडी होती थी, एक वाइट साड़ी पहन के होती थी. काली साड़ी कहती मैं कह रही हूँ मत कर, ये कुछ मत कर. दूसरी कहती थी कर. तो अपने जेबन में जो काली साड़ी वाली है ना, उसको निकाल दो. जब वो आए तो उसको बोलो हट. माइकल डगलस के फादर कर्क डगलस बहुत स्मोक करते थे और फिर उन्होंने छोड़ दिया सिगरेट. तो फिर वो क्या करते थे, वो अपनी जेब में, ऊपर की जेब में एक सिगरेट रखते थे और जब उनको पीने की तलब होती थी तो वो जेब से सिगरेट निकालते थे और उसको कहते थे यू स्ट्रांग मी स्ट्रांग मी स्ट्रांग. So you have to find out. Now the authorities are asking. Yes, ma'am. Now that is not the case. एक जमाने में होता था, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस ब्लूज से निकले थे, हमारे को एक हीन भावना थी. अब तो आप जैसे दिखते हैं वो आपकी ताकत है. The way you look is your power, and I think it's not right to blame cinema for everything. Cinema is also a business. People have put in a certain amount of money, but there are so many actresses and actors who are a rage today on OTT platforms, in film things also. I gave a chance to a rank newcomer. She did not know. So no, sir, I'm not blaming. Actually, no, I'm grateful I'm also for the cinema, because sometimes if we see in our general society, if like there are certain TV. आप अच्छा करिए ना. Yes, sir, we are. आप अच्छा करिए और अगर आप एम्बेसडर बन जाइए अच्छा करने के. And I'm saying it with all my love for you. I do my job as I do my job. तो आपको देखकर अगर 4 लोग भी प्रेरित होते हैं तो आपका काम हो गया है. तो बात बजाय इसके कि त्रुटि निकालने के, आप नहीं निकाल रही हैं. इसी there are people who are criticizers and there are people who are doers. Become doers. क्रिटिसाइज तो कोई भी करता रहता है. क्रिटिसाइज करके ये मत सोचो कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया. हाँ. Take care of yourself. Lots and love to you, and go and become the hero of yourself. I now request our esteemed steering